Okay, start recording and then share the screen. Share the desktop. Okay, so starting again. So we were just saying that again the ImageNet. So we say there's a 14 million images with 22,000 categories. So or SimNet का भी मैंने बता दिया था. So that was the ImageNet data set. So finally that was the Kaggle data set that is called facial expression recognition. So what is पीछे वाला था gender and age detection और ये इसमें है that is facial expression. So what is a facial expression? If the इमेजेस को देख के बताएं कि बंदा गुस्से में है, डिस्कस्ड है, खौफजदा है, खुश है, नाराज है, सरप्राइज है. So these are all 7 or 6 कुछ लोगों ने 7 expressions को भी जो है वो nervous वगैरह को इसके अंदर डाल दिया. तो so we just use the images to find the expression of a human. So just see, look at the people work on the facial expression too. So this one is again the Adians data set for the for this one. So this one is facial expression, Kaggle facial expression recognition challenge. So look at that, these are all 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 categories. So हो सकता है ये बुक जब लिखी गई है तो it will be 2 or 3 years old. अब मजीद categories आ गई हैं और मजीद जो है networks आ गए हैं, तो हो सकता है मजीद data set इसके अंदर include हो गए. ठीक है. So this is just हमने थोड़े से popular जो data set हैं उनको यहाँ पे discuss कर लिया. So these are all the image data set. So again, in one line summarization, image classification is the task of assigning a label to an image. So image है किस चीज की image है? Dog, cat, human, male, female, digit. So हमने कई सारी images देख ली from a predefined set of categories. So we just define the category. So this is the data set of this for the image classification. So here we just finish the image classification. So we just finish here. How can I bring it down? Okay, let's close. And we go back. It's the Zoom. Okay. And we comes here to our first classifier. Okay. So इससे पहले जो मैंने lecture लिया था, that was the name of that course was Introduction to Machine Learning. But इस दफा मैंने उसको rename करा दिया था, that is Artificial Neural Network, focusing only to the neural network. खैर ये टाइटल में चेंज कर दूंगा जब मैं स्लाइड्स अपलोड करूंगा, तो आई विल चेंज द टाइटल फ्रॉम टू मशीन लर्निंग टू द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. सो लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट इमेज क्लासिफायर. सो हम पहला अपना इमेज क्लासिफायर देखते हैं, बट अगेन दिस इज KNN, के नियरेस्ट नेबरहुड. सो दैट इज अगेन एक क्लासिफायर है, but is again it is a not a neural network classifier. ये extended classifier है machine learning का. ठीक है. So before हम neural network कितना अच्छा काम करता है और कितना उसकी accuracy है, कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, उसको देखने से पहले हम एक standard machine learning that is KNN, we will just see that what is KNN classifier. Okay. So again that is the chapter 7 of the this book. We have just taken this KNN from this book. Okay. So what is KNN? So a simple classifier. What does it mean by the word KNN? So हमारे पास आप थोड़े सा जब हम ये KNN क्लासिफायर में LMS पे लोड करूंगा तो वहाँ पे हो सकता है कुछ लिंक्स जो हैं इसकी मैं आपके साथ शेयर करूं कि व्हाट इज बेसिकली KNN का मकसद क्या है. और ये मशीन लर्निंग में जो है बहुत ही नाइव और बहुत ही सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है.
और ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है. So let's study what is KNN. The K means just a variable. K nearest neighbor classifier is by far the most simple machine learning and image classification algorithm. Okay, how to pause recording. हेलो वालेकुम सलाम जी, मैं बात कर रहा हूँ. आप थोड़ा सा हमें सुनिए, कुछ बात करिए, मतलब पोजीशन एडमिनिस्ट्रेटिव किसी पोजीशन भी नहीं कि पेरेंट्स बच्चों को किसी तरह मजबूर कर रहे हैं. कहीं अगर बस मेरे पास से ऊपर ये इस बात करो. ठीक, थैंक यू. चलिए, ओके, थैंक यू. हेलो. सर कुछ मेंबर्स ज्वाइन करने की कोशिश कर. हाँ, एक मिनट. स्टूडेंट्स आर वेटिंग, उनको वो करा दें. ओके, वेट. ये कुछ लोग हैं एडमिट आगे. Okay, so everyone is listening. Hello. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir.
जी सर। Yes, sir. Okay, so we were just saying that K nearest neighborhood. So what does it mean by the nearest neighborhood, or what is the K nearest neighbors? So it's by far a very simple classifier. Just see how इसको अभी हम प्रोग्राम भी करेंगे, इसको अभी हम देखेंगे भी कि ये कितना अच्छा क्लासिफायर है. So the algorithm directly relies on the distance between the feature vector. ठीक है. इसमें क्या है कि हमारे पास क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कैट, डॉग एंड पांडा की हम तस्वीरें ले लें और उसको हम KNN के ऊपर क्लासिफाई करें. तो सपोज हम डॉग भी है, कैट भी है और पांडा भी है. तो जब हम कैट की पिक्सल वैल्यूज लेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि जो कैट का जो फीचर वेक्टर है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है. इट कैलकुलेट्स द डिस्टेंस. डिस्टेंस का मतलब फर्क है. ठीक है. सो लास्ट टाइम अगर हमने शिफ्ट में थोड़ा सा याद है हमें, तो वी यूक्लिडियन डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते थे बिटवीन द टू वैल्यूज. अगर ज्यादा होगा तो फर्क ज्यादा होगा, अगर वो डिस्टेंस कम होगा तो वो फर्क भी कम होगा. कि मतलब ये जो कैट की पिक्सल वैल्यू है वो कितनी सिमिलर है टू द कैट, टू द डॉग, टू द पांडा. अगर सिमिलर ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा. वी कैलकुलेट द डिस्टेंस, द पिक्सल वैल्यू ऑफ अ कैट with the pixel value of a dog. So and we calculate this distance. So इसके कितने neighbors हैं जो इसके करीब हैं? How many neighbors that are there that are closer to this object? So that is called who are the neighbors of this pixel. ठीक है. So हमने एक pixel उठाया, cat का pixel उठाया, and we will see who is the neighbor. यानी कौन क्लोज मौजूद है. सो दैट्स व्हाई हु इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ दिस पिक्सल. सो द एल्गोरिथम डायरेक्टली रिलाइज ऑन द डिस्टेंस. सो हम कैसे पता करेंगे कि ये नेबर है? अब हम तो ह्यूमन है, हमें पड़ोसी का तो इस तरह पता यार ये साथ वाला जो घर है या साथ वाला दरवाजा है दैट इज अ नेबर. अब कंप्यूटर वाले को तो नेबर के कैसे पता चलेगा? वो बोलेगा कि यार इतना फासला होगा तो ये नेबर है, ये इससे ज्यादा होगा तो नेबर नहीं है. तो डेफिनेटली वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द फीचर वेक्टर्स. अब अगेन एक चीज मैं बताऊं, फीचर का यहाँ पे मतलब है, वहां पे था इंटरेस्ट पॉइंट्स, यहाँ पे हम यहाँ लेंगे कि द रॉ पिक्सल वैल्यू. वो जो इंटेंसिटी वैल्यू है जो डॉग की दिखाई दे रही है कितनी सिमिलर, कैट की दिखाई दे रही कितनी सिमिलर है टू द कैट, टू द डॉग, टू द पांडा. अगर वो पिक्सल वैल्यूज जो हैं वो कैट से करीब तरीन है तो हम बोलेंगे दैट इज अ कैट. अगर वो डॉग के करीब है तो दैट इज अ डॉग. अगर वो पांडा के करीब है देन दैट इज अ पांडा. ठीक है. सो जस्ट वेरी सिंपल डेफिनेशन. एक्सक्यूज मी सर. जी जी बोले. हेलो. थोड़ा जोर से बोले, माइक को करीब करें, माउथ के करीब करें. जी बोले. हेलो. कौन है, क्या कहना चाह रहे हैं? सियारी बता दे कौन बोल रहे हैं. ये हेलो. इवनिंग वाले हैं, बिलाल बताएगा सर. बोलना चाह रहे हैं या 12 कौन है? 112 तकी है. तकी 12 तकी है. यस सर. और कोई जो बोलना चाह रहे हैं? ठीक है. सो let me so just this is a K nearest neighborhood. ठीक है. खैर in the end we will just check the simple videos on the internet that what is KNN. So we take a value and we will calculate we will calculate the neighbors and we will find the neighbors of that value. So that is called the K neighbors. Okay? So if we just see KNN, so देखिए K nearest neighbors. So you just KNN in Python and R. So ये यहाँ पे इन्होंने फिगर भी दी हुई है. So if we go to the images, so I don't know.
So look at that, these are जो सर्कल के अंदर है, that is my neighbor. So ये दूसरी पिक्चर देखें, यहाँ पे ये देखें. So just see this picture. So look at that, जिसे blue के neighbors are these one, these are my neighbors and the others are not my neighbors. So we just calculate the neighbors. So इसके ऊपर अगर YouTube में जाएं तो YouTube में videos भी मौजूद होंगी, ठीक है? So we will just check and program this today. और आज मैं बताऊंगा कि आपको Python कितनी practice आपको चाहिए, और definitely हो सकता है मैं Python का quiz next week ले लूं कि आपको Python की पिछले प्रैक्टिस भी करें और थोड़ा बहुत Python आपको आना भी चाहिए कि अभी हम जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको पता हो कि इसका क्या मतलब है, ठीक है? Simply put, the KNN algorithm, so which is our case are the raw RGB pixel intensities of the image, ठीक है? Simply put, the KNN algorithm classifies unknown data points by finding the most common class among the K closest examples. ये अभी मैंने सारी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अभी सारी डिटेल आपको उसको समझ, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे मुझे रोक सकता है, ठीक है? So each data point in the K closest data point casts a vote, ठीक है? वोट कैसे कि मैं वोट क्या डालेगा कि देखें डॉग के कितने नेबर्स कैट से मिलते हैं, कैट के खुद के कितने नेबर्स उसके साथ मीट करते हैं, और पांडा के कितने नेबर्स. तो जो ज्यादा पॉइंट्स करीब तरीन होंगे तो उसमें हम देखेंगे कि दैट इज अ कैट के ज्यादा नेबर्स हैं कैट के साथ, तो हम कहेंगे कि दैट इज अ कैट. और अगर वो ऑब्जेक्ट जो है डॉग के साथ ज्यादा वोट्स होंगे तो फिर हम बोलेंगे कि डॉग है. अगर पांडा के होंगे ज्यादा वोट्स तो हम कहेंगे दैट इज अ पांडा, ठीक है? सो जस्ट सी, एंड द कैटेगरी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स विंस, ठीक है? एंड द कैटेगरी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स विंस, ठीक है? इन प्लेन इंग्लिश, टेल मी हु योर नेबर्स आर. आपका नेबर कौन है तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन हो, ठीक है? माय नेबर्स आर कैट्स, देन आई एम अ कैट, एंड इफ माय नेबर्स आर डॉग, then that is a object dog, and if my neighbors are panda, then I am a panda. So whoever is my neighbor, then I will tell you who you are, ठीक है? तो then this is the main thing of the K nearest neighborhood. So यहाँ पे देखें आपके पास एक इमेज दिखाई गई है. So please don't draw. I think ये मैंने फीचर भी चेक नहीं किया, पता नहीं अभी किसी ने last time who draw the on the screen. Can I erase? Can I erase something? Okay, यहाँ पे okay. Oh God. Okay, so just see the first image. Look at, there is a panda. Who is my neighbor? I will check the distance. जो मुझे इमेज दी गई है उसका डिस्टेंस में डिफरेंट इमेजेस के साथ देखूंगा. So just see the dogs is very far away from the panda. Look at this one, very far. So competition किस में होगा? The panda just look like either cat or a panda. So because क्योंकि दोनों के जो स्किन के पर्स हैं वो एक जैसे हैं, डॉग के जो स्किन के ऊपर पर्स मौजूद नहीं है बट इसके ऊपर हैं. So just see, look at the cat के जो हैं वो जो बाल वगैरह हैं, जो पर वगैरह, who is doing this thing? Who is doing? ये क्या कर रहे, कौन कर रहा है? ये इसको इरेज कर दें जो भी कर रहा है इसको. हेलो, I don't know, sir. ओके खैर, वैसे मिल गया तो फिर रिपीट ही करता रहेगा कोर्स. ओके खैर, so we will just find the neighbors, and how to find the neighbors? We will just take a picture and we will find the distance between the different pictures. So just we are given with the panda picture and we will calculate the distance between the picture of the cats, and we will calculate the distance between the picture of the pandas and also to the dog. So jiske kareeb tareen hoga, then we will say that is a panda or that is a cat. Okay,
So in order for the KNN to work, it makes the primary assumption that the images with the similar visual contents lie close together in any n-dimensional space. So ये अभी मैंने बताया कि यही primary assumption ये कि with the similar visual content का क्या मतलब जो नजर आ रहा है. So ये मुश्किल बात नहीं है. जो similar नजर आ रहा है वो एक दूसरे के close होंगे. So the one that is very close to each other in n dimension. So the one that is नजर एक जैसे आ रहे हैं तो हमें यही फील होगा, हम यही अज्यूम करेंगे कि ये उसका नेबर है. So the three categories examples we have plotted the fullness of the animals coat along the x-axis and the lightness of the coat along the y-axis. So हम लोगों ने क्या किया, जो लास्ट इमेजेस हैं यहाँ पे देखें, ये जो फ्लफीनेस है वो हमारे पास x-axis के ऊपर है और लाइटनेस ऑफ अ कोट, सो जो उसके ऊपर जो स्किन वगैरह है, फ्लफीनेस और लाइटनेस ऑफ द कोट वाई एक्सिस के ऊपर है. तो इसमें ये जो फ्लफीनेस है इसके ऊपर ये किस तरीके से एक जगह पे करीब तरीन है. तो यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस में ये कितने करीब तरीन है और लाइटनेस में ये एक दूसरे के जो ऊपर नीचे है वो कितने करीब तरीन है. देखें जो लाइटनेस ऑफ द कोट है, जो मैंने कहा स्किन के ऊपर पर मौजूद है या नहीं मौजूद, उसमें देखें डॉग की स्किन के ऊपर ज्यादातर मौजूद नहीं होती. स्किन जो है दैट इज अ फ्लैट. सो लुक एट दैट. इसमें जो है वाई एक्सिस में देखिए पांडा इज वेरी अवे फ्रॉम द डॉग. सो स्किन के ऊपर जो है, बाकी वाई एक्सिस में देखें बहुत ज्यादा है, बट एक्स एक्सिस में मे बी इट इज अ बिट सिमिलर फ्लफीनेस के ऊपर. सो वाई एक्सिस इट इज हैज अ मोर डिस्टेंस. ठीक है. सो plotted the fluffiness of the animal coat with the x-axis and the lightness of the coat along a y-axis. So in order to apply the KNN classifier, we first need to select a distance metric or similarity function. So हम क्या कहते हैं, L2 distance जो हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस है, हम ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है. कॉमन चॉइस इंक्लूड्स द यूक्लिडियन डिस्टेंस, often called the L2 distance. So पहली चीज QI, PI and I1 to N. ठीक है. पहली चीज ये है कि 0.1 माइनस द 0.1 ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है. पहला पॉइंट माइनस पहला पॉइंट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, फर्क कितना आता है. अगर एक जैसा होगा तो फर्क कम आएगा, ज्यादा होगा तो डिफरेंस ज्यादा आएगा. और अगेन हमने उसको स्क्वायर कर दिया. स्क्वायर में फिर अगेन आपको मैं बताता चलूं कि स्क्वायर हम दो वजह से करते हैं. एक तो हम नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करते हैं एक, और दूसरी चीज ये है कि वो वैल्यूज को इम्प्लीफाई करता है, मतलब ज्यादा बड़ा कर देता है. अगर वैल्यू छोटी है, अगर आप उसको स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी. और दूसरी सम ऑफ स्क्वायर एरिया, ऑल मेक सम ऑफ ऑल द वैल्यूज. First value minus first object minus first value of the second object, square it. फिर दूसरी value minus दूसरी value of the second object, square it, then plus, then third value, fourth value, add them up और finally square root calculate करें तो distance पता चल जाएगा. तो the first value of a cat subtract with the first value of a panda, subtract with the first value of the cat, square them, plus second value of a cat plus minus with the second value of a panda, square, plus then third value of a panda minus third value of a cat, square it, and then when all values are summed up, then you just under root them. That is the way to calculate the Euclidean distance. Again दोबारा बता रहा हूं, अगर हमारे पास एक तरफ 4 वैल्यू है और दूसरी तरफ भी 4 वैल्यूज हैं, if we have 4 values on one hand, on 4 values on the other hand, और अगर मैं कहूं कि इन वैल्यूज के बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस पता करें, तो आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे माइनस पहली वैल्यू ऑफ द सेकंड एरे, स्क्वायर इट, प्लस फिर second value minus the first array with the second value of the second array, subtract them, square them, plus. इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, and we just check it how to calculate the Euclidean distance. ठीक है.
However, other districts such as Manhattan block, so उसके अंदर देखिए square मौजूद नहीं है. L1 distance can be used as well. So the first one, this is the Euclidean distance where you square them and then sum them and finally square root it. Okay? And this one we just subtract no square and just sum them up. So we have no square root. That is called the Manhattan or city block, often called the L1 distance can be used as well. You can use whichever distance metric function that most suits your data. So जो भी आप use करें, या तो Euclidean distance को use करें और Manhattan जो है city block वाले को use करें, and give the best classification results. For the remainder, we will use most popular distance, that is the Euclidean distance. We will check the Euclidean. अब इसको हम code करेंगे. We will just go and code this data set. ठीक है? So I worked KNN example inserting a new animal. ठीक है? So then okay, so okay, मैं इसको कवर करके I then will go for the code. थोड़ा सा मैं कोड की तरफ जाऊंगा. कोड की चल let's complete this first. ठीक है? तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि इधर we will go for the code और here let me complete our worked example. KNN example is inserting a new animal. So पहली चीज ये है कि आपने एक एनिमल उठाया और उसके सारा रॉ डेटा आपने उठाया. रॉ डेटा का मतलब वही जो आपके पास पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज हैं, रो वाइज रो कॉलम. तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज एक एनिमल की उठा ली. अब एक नया एनिमल आप उसमें डालेंगे. वो नया एनिमल जो है वो जो नया एनिमल है वो किस तरह दिखता है. सो वी हाउ टू इंसर्ट अ न्यू एनिमल. सो वो किस चीज की कैटेगरी होगी. वो कैटेगरी जो है वो कैट है या डॉग है या पांडा है. सो बिटवीन टू मेक अ क्लासिफिकेशन. And we know that it is require a distance, a similarity function to compute these distances. हम अगर कोई नया एनिमल डालेंगे तो वो किस तरीके से डालेंगे, वो किस तरीके से दिखता है. तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने दो चीजों के ऊपर, हमने फ्लफीनेस के ऊपर और लाइटनेस ऑफ द कोट, जो उसकी स्किन पे जो कोट है उसको देखने के लिए और फ्लफीनेस को देखने के लिए, ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर हम सिमिलैरिटी मैट्रिक को मेजर करेंगे. अगर वो दोनों चीजें जो हैं वो सिमिलर है, एक दूसरे के साथ ज्यादा सिमिलर है, तो वो ऑब्जेक्ट उसी तरीके से नजर आएगा. सो जस्ट सी दिस वन. सो लुक एट दैट. इफ यू ऐड अ न्यू एनिमल, सो इफ इट लुक्स लाइक इन दिस फ्लफीनेस एंड द लाइट ऑफ अ कोट, स्किन जो है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है और उसका जो फर्ज वगैरह है वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं. तो जस्ट इफ इट इज लुक लाइक अ डॉग, तो देन वी विल पुट इट इन अ डॉग कैटेगरी. अदरवाइज वी विल पुट इन अदर कैटेगरीज लाइक cat and panda. Okay, so we inserted an unknown animal that we are trying to classify using. अब एक नया unknown animal आ गया है. ठीक है? अब हमारे पास बाकी that we are trying to classify. अब हम ट्रेन कर चुके हैं. अब हमारे पास एक नया एनिमल आया और हमने बताना है कि ये जो नया एनिमल है ये इनमें से किस एनिमल की तरह दिखता है. सो दैट वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई यूजिंग ओनली अ सिंगल नेबर व्हिच इज K1. इन दिस केस द नियरेस्ट एनिमल टू द इनपुट इमेज इज अ डॉग डेटा पॉइंट. तो हम एक K1, एक नेबर कौन सा, सो बाकी ज्यादा नहीं देखेंगे. एक नेबर देखो, वो नेबर कौन है, उसका जो पहला नेबर है वो इज द फर्स्ट नेबर. So the first neighbor is 1. In this case, the nearest animal to the input image is a dog data point. Thus, our input image should be classified as a dog. So the first animal, और हमने उसके सिर्फ पहला ही पड़ोसी देखे, पहला neighbor देखे, और that neighbor is a dog. And we will see कि इस जो ये करीब तरीन है dog के, तो then we will see that is a dog. Okay. So inserting another animal, we insert another unknown animal. This animal using K3. अब हम तीन neighbors को देखेंगे. We have found 2 cats and 1 panda in the top 3 results. So अब जो इसके neighbors हैं उनमें से 2 cat हैं और 1 panda है. 3 neighbors देखें और उन neighbor में से 2 cats and 1 panda. So since the cat category is the largest number of votes. अब देखो vote हमारे पास 2 vote जो हैं cat के और 1 vote जो है हमारे पास panda का है. तो largest vote cats के will classify our input image as a cat. We can keep performing this process for varying values of K. 3 neighbors देखने, 4 neighbors देखने, 1 neighbor देखने, but no matter how large or small K become, the principle remains the same.
क्या प्रिंसिपल है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कितने क्लोज नेबर्स उसके मौजूद है, जितने ज्यादा नंबर वोट्स होंगे उसको हम क्लासिफाई करेंगे कि दिस लुक्स लाइक दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो लुक एट दैट, दिस वन जो अभी मैंने पिछला यहाँ पे आपको बताया। सो लुक एट दैट, दीज आर द 3 नेबर्स and this one is the 1 neighbor. So this is a simple KNN example. So simple KNN example है, और ये यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा कोड करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यू मस्ट नो द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप जो पुराने लेक्चर्स हैं वो आप उठा लें। लेकिन अगर फिर भी वो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसमें, यानी पाइथन को सीखने में, तो ऑनलाइन बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। तो अगर इन केस कुछ लोगों को पाइथन में प्रॉब्लम हो रही है तो सीआर को बता दें, तो हो सकता है हम कोई दूसरा कोई एक्स्ट्रा लेक्चर उसके लिए रखें, ताकि पाइथन को मैं दोबारा अगर हो सका तो मैं दोबारा रिपीट करा दूं। लेकिन ये नहीं कि अगर जो लोग कम होंगे तो फिर आप, उसका मतलब है कि आप लोगों को पाइथन पहले से आ रही है। ठीक है, सो पाइथन के वेरिएबल्स, पाइथन के कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, लूप्स और जो एरेज हैं, वो सारी की सारी चीजें अगर इन केस आपको याद नहीं है तो आप बिल्कुल आप मुझे उनके साथ काइंडली आप मुझे बता दें, तो वी विल कीप अ लेक्चर ऑन इट। ठीक है, तो हाउ मच पाइथन वी नीड फॉर दिस वन, और हम इस KNN को अभी कोड करने जा रहे हैं। तो इस आप, मैं उम्मीद करता हूं कि यू हैव जस्ट installed Ubuntu or Windows, and then you also installed OpenCV, and also that OpenCV with it, and also Python with it. ठीक है, Python की सारी लाइब्रेरीज वगैरह जो इसके साथ आपने इंस्टॉल की भी होंगी। ठीक है, सो इसके साथ साथ मैंने कुछ हैंडआउट्स बनाए हुए, so I will go for the handouts. So इस हैंडआउट्स में I will just see that how the code will look like. ठीक है, तो मैं कोड भी करूंगा और ये हैंडआउट्स में आपको अपलोड भी कर दूंगा कि so just will show you the handouts and then KNN classifier, और इसमें मैंने पूरी डिटेल लिखी हुई है कि how will we code the KNN classifier. So ये अगेन डेफिनेटली ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने लाइन बाय लाइन इसको इम्प्लीमेंट करना है और लाइन बाय लाइन चेक करना है कि KNN किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। सो आई विल इम्प्लीमेंट एज वेल डेफिनेटली। मैं सारा कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह मैं पुरानी क्लासों में करता था, वो सारा कोड जो है जैसे वहाँ पे कंप्यूटर विजन में होता था, तो आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए आपके पास जैसे पाइथन की थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि इफ क्या है, लूप क्या है, और दूसरी तीसरी चीजें क्या मौजूद है। ठीक है, सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज पूछना चाहते हैं आप? एनीवन कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे पाइथन नहीं आ रही है, आप पाइथन रिपीट करें, या ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, कोई इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स? सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग बिफोर कि मैं इस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू करूं। सर आप बेसिक्स एक दफा रिपीट कर देंगे सबके लिए तो बेटर होगा। हाँ, और कोई जो बेसिक का कहना चाह रहा है? एनीवन? जी सर बेसिक्स रिपीट कर दें एक दफा। सर बेसिक्स से ये रिपीट कर दें। बेसिक्स वापस रिपीट करना है जी, थोड़े बहुत सर रिमाइंडर। कौन, कितने लोग हैं बेसिक्स वाले? सर 16 अच्छा, फिर ऐसा करते हैं 17 18। हेलो, कोई आवाज आ रही है? तो जो लोग जो शेयर करना चाहते हैं तो मंडे या ट्यूसडे को 1 o'clock है या 12 o'clock, जहाँ पे टाइमिंग होगी, मैं उधर ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। जिन लोगों को पाइथन में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वो सारे बेसिक जो है वहां पे शेयर कर दूंगा। अगर ये मैंडेटरी लेक्चर नहीं है, एक बार फिर बताऊं, अब ऐसा ना हो कि फिर आप लोग उस दिन फिर अवेलेबल ना हो और फिर आप ये कहेंगे नहीं सर हमें तो नहीं। देखें, पाइथन इज बेसिकली अ प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। अच्छा, ओके, इस तरह, इज दिस ओके? यस सर। मैं टाइमिंग आप लोगों को संडे या सैटरडे को शेयर कर दूंगा, तो उस दिन हम पाइथन की प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे। ओके सर। एनी प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, थोड़ा सर। बहुत ऑब्जेक्ट, हाँ कोई सवाल? नहीं अच्छा थोड़ा बहुत हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी चाहिए इसके लिए, एक चीज मैं यहाँ बताता चलूं। और डेफिनेटली अगर कोई चीज आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप उसको छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है। तो आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, कल आपने कुछ प्रोग्राम करना होगा, तो डेफिनेटली इसका लाजमी मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और फिर आप कंप्यूटर साइंस के और आजकल आप थोड़ा सा भी टाइप करेंगे तो आप, अगर आपको पाइथन चाहिए तो इफ आई टाइप पाइथन, सिर्फ पाइथन लिखूंगा तो यू विल गेट हाउ मेनी ट्यूटोरियल्स। वेलकम, खैर ये तो पहला उसका होम पेज है। सो डेफिनेटली उधर लिखा हुआ है, देखें पहली चीज पाइथन फॉर बिगिनर्स। So you just see Python tutorials. So a lot of tutorials are there or online edit. Like the W3 schools के ऊपर भी मौजूद है. So you can just see the video lectures मौजूद है. नीचे देखें, ये देखें सब Python programming language. खैर ये तो विकिपीडिया में, उसके कोड एकेडमी में है Python 2 and so on. So many tutorials. अगर आप Python के ऊपर tutorials लिख दें तो tutorials, so you will see a lot of tutorials on Python. So or even documentation tutorials point, अगर आप Python for data science देखें, आजकल तो data science के लिए भी आया हुआ है, ओके, जो हम पढ़ रहे हैं, ओके, data science, Python for data, जो free Python data science intro, so Python for data science course for beginners. So look at this one. So ये देखें आप data science, so free 10 days trial, ओके भाई शेरियार राजपूत तो अभी आ रहे हैं, उनको तो दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो खैर अगर इन केस में, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं